अवतार मेहर बाबा की जय। Jai Baba, everybody. Welcome to the Thursday session from our Bombay Center. Janice, could you do the prayer, please? Thank you. अवतार मेहर बाबा की जय. Beloved God, help us all to love you more and more, and more and more, and still yet more, till we become worthy of union with you, and help us all to hold fast to Baba's daman till the very end. Avtar Meher Baba ki jai. Avtar Meher Baba ki jai. Avtar Meher Baba ki jai. सबसे पहले I would like to call upon one and only Lord Meher Baba to please come and stay with us during this entire show, uh, the session, and not only just come and visit us, but take over the proceedings of this entire session. Uh, Last week, this lady, Mani Damanya, had spoken very well, but unfortunately, she could not complete all that she had to say. And there are some gems that she has to share. So we have invited her one more time. लास्ट सेशन के दरमियान ये मनी ने बहुत ही सुंदर चीजें बताई थी. उसमें से दो दो चार चीजें जो मेरे ध्यान में बिल्कुल घुस गई है, वो I would like to revise and just remember it all over again. One of them was कि उनके husband जब आखिर इसमें बहुत ही बीमार थे, तब she requested Baba to set him free from his pain. वो कोमा में थे, फिर भी बहुत पेन थी उनको. और उसी समय वहां से उनकी पेन की खत्म हो गई और उनको आराम मिला. ऑफ कोर्स उसके थोड़े देर बाद और वटेवर वो बाबा के पास चले गए. लेकिन जो मुझे सबसे इंटरेस्टिंग यही लगा कि उन्होंने बाबा के पास से किसी भी तरह का सेल्फिश मोटिव से नहीं ये मांगा था. उन्होंने नहीं मांगा था कि उनका हस्बैंड ठीक हो जाए और उनका परिवार वापस ये हो जाए. She did not ask for any of her selfish reasons. All she wanted was कि उनके husband की जो पीड़ा है, the suffering and the pain that the man was going through, वो कम हो जाए. And that Baba responded almost instantly. तो कहने की बात ये है कि जब भी हम सेल्फलेसली किसी भी चीज खुदा से मांगते हैं, तो बाबा तुरंत उसका जवाब देते हैं. ये मुझे बहुत ही अच्छी तरह से मेरे दिलो जान में घुस गया है. एंड वी आस्क बाबा फॉर सो मेनी थिंग्स, ये देव वो देव, that is okay, but when you really ask sincerely for an unselfish reason, दूसरे किसी की सहायता या मदद के लिए सच्चे दिल से जब ईश्वर को याद करते हैं,
तब he responds instantly. Another good news is कि मेरी बॉस ये मैडम जेनिस मेहराबाद से होके आई है. She's just returned from there yesterday and वहां से वो एक सॉन्ग सीख के आई है which she would like to present. तो मनी, इफ यू डोंट माइंड, जरा 5 मिनट पहले उनका सॉन्ग सुन लेंगे और फिर उसके बाद आपका प्रोग्राम शुरू करेंगे. जय बाबा. अवतार मेहर बाबा की जय. Oh, beloved, I have come to bow down to the Ancient One. Accept my heart, accept my mind. I bow before your love divine. Meher, Meher, let your love song fill the air. Meher, Meher, my heart belongs to you, Meher. I am yours, take all of me. My life I lay down at your feet. I bring my cup for you to fill. I bow before your perfect will. Meher, Meher, let your love song fill the air. Meher, Meher, my heart belongs to you, Meher. I give myself and all I do. This song of praise I offer you. I put my life into your hands. I bow before your perfect plans. Meher, Meher, let your love song fill the air. Meher, Meher, my heart belongs to you, Meher. With heart and soul I follow you. I find you in all things I do. Drown me in your holy name. Consume me in your sacred flame. Meher, Meher, let your love song fill the air. Meher, Meher, my heart belongs to you, Meher. Meher, Meher, let your love song fill the air. Meher, Meher, my heart belongs to you, Meher. My heart belongs to you, Meher. My heart belongs to you, Meher. Avatar Meher Baba ki jai. Thank you, Baba, for everything. Thank you. जिस दिन सचमुच हार्ट बिलोंग्स टू यू मेहर हो जाएगा हमारा, देन वो अपने हो जाएंगे और हम उनके हो जाएंगे. दैट्स द वे इट इज. एनीवे, इनफ ऑफ ऑल दिस. अभी मनी, दमनिया, कैन यू प्लीज टेक ओवर. आप आ जाइए मैदान में कुश्ती खेलने को. जय बाबा. जय बाबा, जय मेहर बाबा, जय मेहर बाबा. जय मेहर. अच्छा, लास्ट थर्सडे जो मैंने बोला, फिर थोड़ी बातें बाकी रहेगी आपको बोलने की, तो मैं बताती हूँ. एक तो ये कि बहुत साल पहले की बात है, जब 1956 में जब बाबा नवसारी आए थे, तब मेरी एक फ्रेंड, उनके मामा जी
बाबा भक्त थे। तो बाबा नवसारी आए थे, तो उसने, मेरी फ्रेंड ने मुझे बोला कि बाबा, मेरे बाबा आए तो चल देखने को जाएंगे उनको। तो मैंने तो मना किया, और मुझे लगता है ये भी बाबा की मर्जी थी, क्योंकि मैं गई तो मेरे मम्मी डैडी जो को मालूम पड़ा, तो मैंने बोली मेरे को बहुत गुस्सा करेंगे, तो बोली चल ना तू, अपन जल्दी आ जाएंगे वापिस। तो मैं गई, पर बाबा की तो इच्छा थी। तो क्या हुआ, हम लोग वहां गए ना, बहुत सी गर्दी, बहुत सी गर्दी, तो आगे तो जा नहीं सके। तो फिर उसी ने ही मेरे को कहा, मेरी फ्रेंड बोली चल मनी घर वापस जाते हैं। तो हम लोग तो घर वापस आ गए थे। तो इस तरह मैं बाबा को देख भी नहीं पाई उस, तो बाबा की मर्जी मैं तो समझती, क्योंकि बाबा मुझे नगर लाए और देखने का मुझे ज्यादा चांस नहीं मिला। मैं मिली तो देखा भी नहीं उनको ना, ऐसा हो गया ना। वो अब तो आपको मैंने बताया था। अभी एक, हाँ, जब मैं बाबा को नहीं मानती थी, मैंने जब जैसा कहा वैसा, और नफरत भी करती थी, तो फिर हाँ, बाबा का नाम लेने की तो बात ही नहीं। कभी मेर बाबा ऐसा शब्द मेरे मुंह से निकला ही नहीं। नहीं, जरूर भी नहीं थी, और मुझे बोलना भी नहीं था। मेर बाबा ऐसा शब्द मैंने कभी नहीं बोला। लेकिन जैसा मैंने कहा था कि मेरे हस्बैंड गुजर गए और मैंने उनको याद किया था, उसके पहले एक बार मैंने मेर बाबा ऐसा शब्द बोला था। सच बात तो ये कि मैंने नहीं बोला था, मुझे बोलना पड़ा था। ये एक इंसिडेंट है और कॉमिक बात है। क्या है, मेरा छोटा बेटा है मेरे डमनिया, उसका जन्म हुआ तब की ये बात है। तो मुझे हुआ था, तो हॉस्पिटल ले गए, और दवा हॉस्पिटल में रूम में मुझे एडमिट किया था। मैं पलंग पे सोई थी। अभी घर के लोगों को तो वो लोग नजदीक नहीं रहने देते, लेकिन डॉक्टर और नर्स पहचान वाले थे। तो मेरे पास मेरे हस्बैंड के मौसी, बानू केरावाला, श्याम केरावाला की मम्मी, तो हम उनको बानू मासी बोलते, वो मेरे पास खड़े थे, पलंग के पास मेरे नजदीक, एकदम नजदीक खड़े थे। और डॉक्टर नर्स पहचान वाले थे, तो कोई कुछ बोले नहीं। अभी हुआ क्या कि मुझे बहुत पेन होती थी और बहुत तकलीफ होती थी, लेकिन जन्म बच्चे का हो नहीं रहा था। तो मैं बहुत ये कर रही थी, रोती भी थी मैं। तो बानू मौसी ने कहा कि तू बाबा का नाम बोल, मेरे बाबा बोलना। तो 2-3 बार वो बोले, मैं तो बाबा का नाम कभी लेती नहीं थी, पर वो 2-3 बार बोले। तो मैंने सोचा मन में, एक बार मेरे बाबा बोलूं तो क्या हरकत है, बड़े लोग का सुनना चाहिए। तो मैंने मन में मुंह बंद करके मेरे बाबा बोले। उनने उनको सुनाई नहीं दिया, तो वापिस बोले तू मेरे बाबा नाम बोलना। तो वापिस मैंने मन में बोला, तो उनको सुनाई नहीं दिया। तो उनको लगा कि मैं बाबा का नाम नहीं लेती, तो बहुत गुस्सा हो गए मेरे पे। इतना गुस्सा हो गए, कहती हो गए मेरे बाबा का नाम बोल, और बोलती रही, इतना जोर से चिल्लाए, मेरे पे वो गुस्सा हो गए। तो मैंने सोचा, एक तो मेरे को तकलीफ हो रही, तो मेरे को सांत्वन देने का, तो उसके बजाय मेरे को गुस्सा करते, तो मुझे उन पे गुस्सा आया, बानू मास पे गुस्सा आया। तो गुस्से गुस्से मैं बोली मेरे बाबा आओ, इतनी जोर से मैं चिल्लाई, इमीडिएट मुझे बच्चे का रोने का आवाज आया। मैंने आंखें खोली, तो सिस्टर के हाथ में बच्चा। मेरी सरप्राइज हो गई। फिर बोले देखा ना, कितनी बार कहा था तूने नहीं लिया मेरे बाबा का नाम, अभी मेरे बाबा का नाम लिया तो तुझे तकलीफ बंद हो गई ना। ये पहली बार मैंने मेरे बाबा शब्द बोला। उसके बाद तो बिल्कुल नहीं, तभी मैंने बोला था कि जब ये गुजर गए तभी मैंने उनको याद किया। तो फिर वो बोले, बानू मसी बोले कि देख उसका नाम मैं रखूंगी। मैं कुछ बोली नहीं, मैं तो खुश थी कि मेरे पेन खत्म हो गई थी और मुझे शांति थी मिली। तो ये बोली उनका नाम मैं मेहर रखूंगी, तू बिल्कुल बोलना नहीं, चुप रहना, बस आज से उसका नाम मेहर। मैंने सोचा कुछ भी नाम रखे तो मुझे क्या है, करके मैं कुछ बोली भी नहीं। मैंने कहा ठीक है।
अरे उसका नाम मेर हो गया, मेर दमनिया। मेरा छोटा बच्चा का जन्म तभी की बात है। अभी मैं कभी कभी मेरा बात जाती थी ना, तो एक दिन मेरे बम्बई में बड़े मेरे हस्बैंड के बड़े भाई आए थे, और उनके मिसेस दोनों, और दूसरा छोटा मेरे डीर होमी दमनिया उसका नाम। तो होमी दमनिया उसकी मिसेस नरगिस, और साबक दमनिया उसकी वाइफ खुर्शीद। ऐसा तो उन लोगों को बोले कि मानी समाधि पर जा रहे हम, तो चल तू भी हमारे साथ। तो मैं गई उनके साथ समाधि पे, रिक्शा में गए हम लोग। फिर वो लोग बोले हम पहले मोहम्मद मस्क को मिलेंगे, मोहम्मद मिलेगा तो अच्छा है। तो हम लोग गए, तो वहाँ पादरी काका थे। तो पादरी काका को उन्होंने बोला कि मोहम्मद मस्क मिलेंगे क्या, हमको हमें उनको देखना है, मिलना है। तो पादरी काका ने बोला मैं पूछता हूँ उसको। फिर वो गए, तो मोहम्मद मस्क उसके साथ आए। तो हमको बोला, पादरी काका ने सब लाइन में खड़े रहो। तो हम 5 जन लाइन में खड़े रहे, वो 4 और मैं एकदम पीछे खड़ी रही। फिर पादरी काका ने मोहम्मद मस्क को बोला, वो लोग तुमको तुम्हारा आशीर्वाद चाहिए उन लोगों को। तो मोहम्मद मस्क कुछ बोले नहीं थोड़ी देर। तो पादरी काका बोले अरे जल्दी आशीर्वाद दे दो, उनको जाने का है, उनकी रिक्शा फिर रिक्शा वाला चला जाएगा, तो उनकी रिक्शा नहीं मिलेगी, तो तुम जल्दी बोलो ना। तो मोहम्मद मस्क ने मेरे पे ऐसे उंगली की, मतलब मेरे को बताया उनको मिलेगा, उनको उनको मिलेगा, ऐसा मोहम्मद मस्क ने कहा। फिर पादरी का चलो चलो करके वो बोले, और पादरी काका उनको ले भी गए। इस तरह मोहम्मद मस्क ने मुझे आशीर्वाद दिया था। और जब भी फिर मैं फिर अकेले भी बहुत टाइम कभी कभी जाती हूँ समाधि पे, कोई भी टाइम। तो मेरी नाना मेरू मेहता, उनके साथ कितनी बार मैं गई। तो जब हम समाधि पे गए ना, तो उस बहुत साल पहले की बात है, तभी ऐसा नहीं था कि समाधि पे जो ज्यादा आवाज कस बोलना नहीं, धीरे से बोलना, ऐसा उस टाइम नहीं था। तो हम लोग समाधि पे गए कि तरत मेरी ननद मेरू प्रेयर शुरू करती थी। तो मंसरी वो तो इतनी जोर से बोलती थी समाधि पे, तो मंसरी आंटी के घर में उनको आवाज आता था। तो मंसरी आंटी जल्दी जल्दी भगते भगते आते और हमारे पास खड़े रहते, वो भी हमारे साथ प्रेयर करते थे। हमेशा ऐसा होता था। इस तरह फिर मैं जब भी समाधि पर जाती हूँ, बाबा का दर्शन करने को जाती थी, तो मंसरी आंटी को मिलने को जाती थी। वो अपने कमरे में अकेले बैठे रहते थे ना, तो मैं जब भी जाती थी तो मंसरी आंटी उनकी बाइक को बोलते आंटी के लिए सीरा लेके आ। तो सीरा लेके आती थी मेरे लिए बनाते, और मंसरी आंटी मुझे खाने को देते थे। ऐसे भी सब बहुत साल पहले की बात है। अभी मैंने आपको जैसा कहा था ना कि मेरा बड़ा बेटा फिरोज को एडमिशन नहीं मिल रहा था, और मैंने बाबा के फोटो के पास बहुत बाबा को विनती की, और उनको एडमिशन मिल गया करके। तो एडमिशन तो मिल गया, लेकिन कॉलेज शुरू हो गई थी, तो हॉस्टल में रहने की तो बात नहीं, सब हॉस्टल फुल। तो मैंने उसको कहा कि तू धर्मशाला में रह, और कॉलेज रोज जाना, तो धर्मशाला में रहना। तो तरत जैसा वाला फैमिली में सब जन बोले क्यों, वो हॉस्टल में क्यों रहेगा, वो यहाँ हमारे पास रहेगा, तो यहाँ रह के स्टडी करेगा और इंजीनियर होगा। तो उनको बिंद्रा हाउस में रहने का चांस मिल गया। फिरोज की बात है, मेरा बड़ा लड़का की, फिरोज दमनिया की। तो बिंद्रा हाउस रहता था। फिर मेहरबान को जरा मदद भी करता था, लाइट का बिल भरने को जाना, टेलीफोन बिल भरने को जाना, बगीचा में झाड़ के लिए साफ सफाई करना, बगीचा ऐसा लोग करता था। वो लोग भी खुश थे, और मेरा लड़का वहां रहता था। फिर जब वो इंजीनियरिंग पास हो गया मेरा बेटा फिरोज, तब मेहरबान ने उसको लूना प्लेजेंट की थी। डॉली, श्याम केरावाला की बेटी डॉली केरावाला, उसको मेहरबान ने कहा
कि एक लूना बिस्कट लेके आ। वो लेके आई तो मेहरबान जस्सा वाला ने मेरा बेटा फिर उसको लीना प्रेजेंट की। फिर वो बिंद्रा हाउस में रहता था। अभी 1-2-3 साल के बाद बिंद्रा हाउस जहाँ रहते थे ना, वो भाड़े का था, उनका अपना नहीं था। तो जो वो बिंद्रा हाउस की जो मालकिन थी ना, लेडी थी, उसने वो जगह बेच दी और उनको पहले बताया भी नहीं कि वो बेचने वाली है। उनको जगह बेच दी और उनको कहा कि अब तुम ये घर खाली करो, मैंने जगह बेच दी है। तो उन लोगों ने तैयारी की जाने की, और घर में बहुत फर्नीचर, बहुत सारे बर्तन, ये सब। तो मेरा घर से 1-2 आदमी भेजा था उनको मदद करने के लिए, पैकिंग के लिए। और उन लोगों ने मुझे बुलाया क्योंकि वो लोग पैकिंग के काम में बिजी, तो घर में पकाना, ये करना, सब मदद करने के लिए उन लोगों ने मुझे बुलाया। फिर जब पैकिंग चल रहा था तो उन लोगों ने बोले कि मनी तू थोड़ा बर्तन यहाँ से ले जा तेरे घर नगर। तो मैंने पहले तो मुझे अच्छा नहीं लगा, पर बोली कि नहीं, सचमुच ले जा, बहुत सारे बर्तन है। और वहाँ क्या करेंगे, वहाँ भी तो बहुत सारे बर्तन है मेरा घर में भी, तो गोडाउन में शायद रख देंगे, तो तू ले जा। तो उन्हें इतने बर्तन दिए मेरे को। और कैसे बर्तन बर्तन जिस बर्तन में मेरे बाबा और लेडीज मंडली का खाना पकते थे, वो लोग पकाते थे, वो बहुत सारे बर्तन उन लोगों ने मुझे दिया। तो ये बर्तन अभी भी नगर में मेरे घर में है, अभी भी है और वो यूज करते हैं। बहुत सारे बर्तन दिए। अभी बाबा की में जब बाबा का खाना पकता था, लेडीज मंडी का, उसी बर्तन मेरे पास थे। ऐसा एक चांस मिला। फिर एरज काका, एरज जसवाला जब गुजर गए, उसने बॉडी ड्रॉप किया, तो उसके पहले मैं उस टाइम में हर संडे को जाती थी बस में, मेरा साथ हर संडे को। और उनको मिलती थी, मेरे ये तो पलंग के ऊपर सोते ही रहते थे। तो एक दिन मैं गई और उनके रूम में, अजून तो मैं दरवाजे के पास से अंदर दाखिल भी नहीं हुई थी, तो एरस ने ऐसा हाथ किया मुझे मिलने के लिए, ऐसा। तो मैं गई और झुक के उसको मिली मैं, तो उसने बहुत जोर से मेरे को ये किया, हाँ, आलिंगन दिया एरस ने। फिर मुझे बोले, मनी तुम पारसी टाइम के लाल सेव जो पारसी लोग बनाने थे ना, वो बहुत दिन से खाए नहीं, तो तू मेरे को खिलाना हो। तो मैंने कहा कि जरूर खिलाऊंगी, जब अगले संडे में आऊंगी ना तब बना के लाऊंगी। तो खुश हो गया, जरूर लाना, हाँ याद रख के लाना। फिर मैं गई। अभी मैं तो हर संडे जाती थी, तो दूसरा संडे आने के पहले एरस ने बॉडी ड्रॉप कर दिया। तो मुझे बहुत दुख हुआ मन में कि एरस की इच्छा तो मैं नहीं पूरी कर सकी। तो मुझे एक दिन बहुत रोना आ गया, मेहरबान के पास बहुत रोई कि मेहरबान ऐसा ऐसा मैंने कहा था, और संडे से पहले एरस तो चल गया। तो मेहरबान ने कहा कोई बात नहीं, तू एक दिन लेके आ मेरा घर में बना के और मंडली को दे। तो मैं बना के लेके गई थी और मंडली को दी थी लाल से, और कहा था कि ऐसा एरस ने मुझे कहा था लाने के लिए करके, ऐसा ऐसे थे। अभी फिर 2-3 साल के बाद मनी, एरस की सिस्टर मनी ना, तो बहुत उम्र थी ना उसकी, 90 कंप्लीट किए थे, तो चल फिर नहीं सकती थी, सोचती रहती थी। तो एक दिन मुझे रोशन केरावाला का फोन आया नगर में कि मनी, मनी को मनु बोलते थे लोग, मनु की तबीयत बहुत खराब है और उसके पास कोई तो भी चाहिए, तो तू थोड़े दिन उसके पास जाके रहे ना, 15 दिन। तो मैंने कहा मैं रहूंगी, कोई बात नहीं। तो मैं गई। तो पहली बार मुझे मेरा घर रहने का चांस मिला, और मनी के पास मैं रहती थी, उनको मदद करती थी हर काम में। तो उनको भी अच्छा लगा।
फिर पहली बार गई थी तो 15-20 दिन रही उनके पास, फिर मैं अच्छी ठीक हो गई मानी तो मैं आ गई। उसके बाद जब भी मानी की तबीयत बिगड़ती वो लोग मुझे फोन करके बुलाते थे कि मानी तेरी जरूर है, जरा मनु की तबीयत ठीक नहीं, तू जा। तो मैं जाती थी खुश होके मेरा जात में, मनु के पास मैं रहती थी। जब भी मनु ठीक हो जाए तो मुझे लोग को बुलाते थे। हाँ, फिर वहां मैंने देखा कि दीवाना एरस का रूम साफ करती थी, एरस का पलंग, पर्दे खिड़की के, फोटा, जितने फोटा एरस के रूम में सब दीवाना करती थी। फिर ब्लू बस में जितने बाबा के फोटो वो दीवाना साफ करती थी, और मंदिर हॉल में भी सब फोटो दीवाना करती। ये काम सब दीवाना अकेले करती थी। और वहां मैं रहती थी मानू के पास, तभी रोज सुबह नाश्ते के बाद मानू मुझे बोलती कि मनी तू दिन भर बैठ के रहती है, तो अभी रोज नाश्ते के बाद तू आधा घंटा वॉक लेके आना। तो मैंने कहा ठीक है। तो उसके वो नाश्ता करके वो सो आराम करती थी, तो मैं जाती थी। तो एक दिन मुझे मैंने देखा दीवाना को, तो मेरे मन में विचार आया कि ये ब्लू बस में जो फोटो है बाबा का वो मैं साफ करूं, ऐसा विचार आया। तो मैंने दीवाना को कहा कि दीवाना तू एरज का रूम में भी सब करती, मंडी हॉल में भी करती, तो ब्लू बस में जो फोटो है बाबा का तो मैं साफ करूं, तू कहे तो मैं। तो दीवाना ने कहा मनी जहाँ तो सब फरूक चलाता है, तो जो फरूक कहते वो करना, उसके उसके बिना नहीं होता, तो तू फरूक को पूछ, ऐसा दीवाना ने कहा। मैंने कहा ठीक है। अभी उस टाइम फरू भी मुझे पहचानता था, मेरे साथ जब भी मिला तो अच्छी तरह से मिलता था, बात करता था, प्रेम से बोल मिलता था। तो मैं गई फरू के पास, और मैंने सोचा नहीं बोला तो नहीं करूंगी, उसमें क्या। तो मैंने कहा फरू मेरी इच्छा है कि बाबा अपने ब्लू बस में जो बाबा के फोटो है ना, तो मैं साफ करूँ रोज। तो वो तो खुशी से बोला हाँ करो, कोई बात नहीं, करना। तो फिर तब से रोज मैं जब वॉक लेने को मनी के रूम में से निकलती थी तो पहले मैं ब्लू बस का फोटो साफ करती थी, और फिर मैं वॉक लेने को जाती थी। फिर मुझे, मैं जब भी वहां रहती थी ना, तो फिर ऐसा जैसे कि मैं वहां के मेंबर हूँ, ऐसा इस तरह से मैं रहती थी। और मुझे कहा भी था अपना गवेल आंटी ने और मेरू ने कि तू तेरे को कभी भी यहाँ आना है, किधर भी जाना है, तो अब तेरे को परमिशन लेने की जरूरत नहीं। तो जब भी मनी मनी सोती रहती थी तो कभी कभी उनको नींद आ जाती थी, कोई भी टाइम में दिन में सुबह। तो जब भी उसको नींद आ गई और सो गई ना, तो उसकी जो काम वाली थी उसको उनके पास बिठा के मैं घूमने जाती थी। कभी भी मैं कौन से भी वक्त को मेरे बाबा के रूम में जाती थी, फिर किचन में, कहीं भी डाइनिंग रूम में, किधर भी मैं जाती थी, कभी भी कोई मुझे बोलते नहीं थे। तो हाँ, तो जब मैं केटी को मिलने जाती थी किचन में, केटी जानती सब दिन भर बहुत ज्यादा घंटा किचन में ही रहते थे, तो हम उनको जाके मिलती थी, उनको मिलने का चांस वहाँ। तो केटी किचन में एक कुर्सी थी जिसके ऊपर केटी बैठ के कामवाली को ऑर्डर देती थी, ये करो वो करो। तो जब जैसी मैं जाती तो केटी उठ जाती कुर्सी पे से, और मुझे बोलते बैठ यहाँ। तो मुझे शर्म आई पहले तो कि वो खड़े रहे और मैं कैसे बैठू एक कुर्सी। तो बोले मैंने कहा ना बैठ, फिर मैं बैठ गई। तो मैं बैठती थी तो उसने जो भी खाना पकाया था, भाजी सब्जी, तो कभी में लाके मेरे को देते थे और बोले ये खा और टेस्ट कर, कुछ कम पड़ा तो तू मुझे बोल, लेते थे सब खा ले। तो जितना भी हो गया वो सब मेरे को खाने को बोलते थे कहते। फिर कहती जाने के बाद फिर मेरू, हाँ तो हाँ मेरू,
फिर जहाँ किसी किसी का भी कोई बर्थडे या अच्छा दिन हो ना, तो वो लोग शीरा बनाते थे। तो मेरू मुझे बुलाती थी, शेरी या तो केसी को भेजती थी कि मनी को बुला ला। तो आते मनु के रूम में और कहते मनी तुझे मेरू बुलाते हैं किचन में। तो मैं जाती थी, तो मैं जाती वहां, तो मुझे डाइनिंग टेबल के पास कुर्सी पे बिठाती और प्लेट के अंदर अंदर शीरा लाके, किचन में से शीरा मनी ला, अरे मेरू मेरू, हाँ, किचन में से शीरा ला के मेरे पास लिखा भी रखती थी और मुझे बोलते थे कि खा। तो मैं शीरा खाती थी हमेशा बोलो। फिर गवे थे, तो गवे भी बहुत प्यार करते थे मुझे। तो बाबा के मेरा साथ में बाबा ने सीताफल का झाड़ लगाया था और आंबे का झाड़ लगाया था। तो हर साल गवेर थैला भर के सीताफल और कैरी, जिस बाबा ने अपने हाथ से लगाया था झाड़, उस ये बेचते थे मेरे घर नगर में हर साल। कैरी के सीजन में कैरी और सीताफल इतने सारे बड़े थैली भर के बेचते थे ऐसा। फिर सब जन गए, फिर एक अकेले मेरू रह गए थे लेडीज में, तो लेडी मंडली में। तो फिर मेरू भी जरा उम्र लायक हो गए थे, तो उन्हें सोचा था और निश्चय किया कि हर साल में एक बार मेरू पूना जाते थे। 15-20 दिन रहते थे पूना। तो जब भी वो पूना जाते थे तो मुझे बुलाते थे वहाँ किचन में ध्यान देने के लिए, उनके बदले में मेरा जात में। तो जब भी मेरू पूना जाते थे तो मेरा जात में मैं जाती थी और पूरा किचन संभालना, खाना पकाना, बाजार में से क्या क्या चीज चाहिए वो सब देखना कि कौन सी चीज मंगानी पड़ेगी। ऐसा बाजार में रामदास नाम का लड़का रोज नजर आता था बाजार लाने को, तो लिस्ट करना, उसके लिस्ट करके उसको देना, ऐसा काम मैं करती थी। जब भी मेरू पूना गई मुझे फोन आता था कि मनी तू आना। तो जिस दिन हो जाती थी पूना, उसके आगे दिन मैं जाती थी और रहती। तभी तो मेरे की सिस्टर तो चली गई। इस तरह मैंने वो भी चांस मिला। तो बाबा ने मुझे बहुत चांस दिया और मेरा साथ में कि परमिशन बिना कोई जा नहीं सकते कोई भी टाइम को, तो मुझे परमिशन थी जाने को। तो ये सब बाबा की कृपा मेरे के ऊपर थी। ये सब ऐसा मुझे याद आता तो फिर मेरे मन में जरा नाराजगी आ जाती कि मैंने क्या किया, कितना मैंने बड़ा गुनाह किया कि बाबा को मैंने गालियां दी, झूठा ढोंगी कहा, क्या क्या नहीं बोली मैंने उनके लिए। फिर भी बाबा ने मुझे हर तरह का चांस दिया मेरा रहने का अपने खुद के घर में, जैसे क्या मेरा घर है इस तरह मैं रही। अभी ये सब है। अभी मेरे को विचार आता और मैं आपको पूछती हूँ, मुझे तो हमेशा विचार आता है कि बाबा ने, मेरे बाबा खुद मुझे लेके आए नगर और मेरा जात। तो फिर जब भी वो मिले तो मुझे उनको देखने का चांस बाबा ने क्यों नहीं दिया होगा। तो मैं हमेशा बहुत टाइम बाबा को बोली कि बाबा एक बार, एटलीस्ट एक बार तो सपने में आओ और अपना चेहरा मुझे दिखाओ। बाबा कभी सपने में आया नहीं। मैं रोज दिन में 2-3 बार बोलती हूँ कि बाबा सिर्फ एक बार तो सपने में आओ। पर बाबा क्यों सपने में आएंगे, मैंने तो कसम खाई थी कभी देखूंगी नहीं उनका चेहरा। तो बाबा नहीं बोलाएंगे। तो अभी तो मुझे खातरी हो गई और मुझे ये होता है कि बाबा सपने में भी मुझे अपना चेहरा नहीं दिखाएंगे। मुझे बहुत दुख होता है। आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, मैंने क्यों बाबा को देखने को चांस मिला तो देखा नहीं, कुछ बता सकते हैं आप कि क्या ऐसी बाबा की इच्छा। सॉरी, ये सब मेरी कहानी है अभी। और अभी भी बाबा को मेरे पर कितनी मेहर है कि मेरे
दोनों बेटे और दोनों बहुएं, वो लोग मेरा इतना ख्याल रखते, मुझे कोई बात की तकलीफ नहीं, कोई बात की चिंता नहीं, आराम की जिंदगी, मैं कुछ काम नहीं कर सकती, पर मेरे हर बाबत में ये चारों ध्यान रखते। और मेरे 4 ग्रैंड चिल्ड्रन, ये भी जब नगर आते मेरे पास, तो सब जन, सबके सब सुबह उठ के पहले मुझे मिलने को आएंगे, बाद में टॉयलेट और ब्रश करना काम करेंगे, लेकिन रूम में से जब बाहर निकलते तो सब के सब पहले मुझे मिलने को मेरे कमरे में आते हैं और मेरे पलंग के पास, और मुझे बैठते और मिलते हैं सबके सब। मनी आंटी, वो एक फोटो जो आपने दिया था वो दिखाना है। कैन वी हैव दैट पिक्चर प्लीज? हाय, हेलो। हाँ, ये श्याम केरा वाला है हाँ, और एरच है, वो दोनों के बीच मेरा केरा वाला का बेटा है, और ओ, एरच के पास मैं हूँ, हम्म, और फिर मेरे पास दादी केरा वाला और मेहरबान जस्सा वाला है, हम्म, और नीचे मनु है और मेरा केरा वाला है, और एकदम नीचे मनी के पास जमीन पे जो बैठे वो केसर है, वो केसर उनकी बाई थी मनु की, और केसर ने बहुत बहुत सालों तक जस्सा वाला फैमिली के लोगों की बहुत सेवा की है, केसर ने, केसर उसका नाम है, वो है। हम्म। मुझे ये एरज जसावाला के टी शर्ट पे लिखेला बहुत अच्छा लगा। इधर लिखा है, आई सर्व द अवतार फॉर 60 years and all I got was this lousy t-shirt. अब ये एरस के पास जो फॉरेनर लोग आते थे ना मेरा जद में, तो जी, सबके सब एरस के लिए टी शर्ट लाते थे, तो जब भी इतने सारे टी शर्ट जमा होते थे तो वो मेरे बेटे को फिरोज को मेरे को देते थे पहनने को। हम्म, खुशी की बात है कि जैसा वाला फैमिली के साथ रहने का चांस मिला, लेडीज मंडली के साथ रहने का चांस मिला, मेरा साथ में रहने का चांस मिला, बाबा ने कितना चांस दिया मेरे को, अभी भी। किसी को कुछ पूछना है? Does anyone want to ask any questions? Yeah, Sam Jivi here. हाँ जी, बोलो जिमी। Money, हाँ जी, मेल और फीमेल डे का खाना अलग अलग से पकता था कि एक ही किचन में पकता था? नहीं, एक ही साथ में, ऐसे ही किचन में जो भी खाना पकता था, तो मनु के रूम में मेरे लिए और मनी के लिए खाना आ जाता था, सबका एक ही खाना। मैन मंडली के लिए भी किचन में से खाना आता था, और बाहर वरांडा के ऊपर टेबल पे बैठ के मैन मंडली खाना खाते थे। बाबा के समय भी ऐसा ही था? अभी बाबा के समय की तो बात मुझे मालूम नहीं ना, क्योंकि बाबा थे तभी तो मैं जाती ही नहीं थी ना, तो तब की मुझे बात मालूम नहीं। ओके। मनी, आपने बोला कि बाबा क्यों मुझे नहीं मिला, तो मेरा जवाब यह है कि मेरा ये जवाब है कि आप बाबा ने अपना मुंह नहीं दिखाया इनडायरेक्टली, क्योंकि आपकी जो जिज्ञासा है कि मैंने बाबा का मुंह नहीं देखा, वो जिज्ञासा जिंदा रखने के लिए बाबा ने अपना मुंह नहीं दिखाया, मेरा ये मानना है। हाँ, वो भी हो सकता है, सच देखो, में। जिसने बाबा को देखा, बहुत समय देखा, बहुत बार देखा, उन लोग को वैसे जिज्ञासा नहीं है। टू बी वेरी फ्रैंक, वो है। अब मुझे ऐसे जिज्ञासा नहीं है, क्योंकि मैंने बाबा को इतने दफे देखा कि अभी मेरी ऐसे कोई प्रार्थना नहीं है कि मैं बाबा को देखूं। अच्छा, मैं आंख बंद करके भी बाबा को देख सकता हूँ, तो शायद वो जवाब होगा, शायद। बाबा जाने।
मैं भी आंख बंद करके बाबा को देखती हूँ, क्या करूँ। बस बस वही है। अच्छा, आपको मेरा और मणि के साथ कुछ संबंध रहा? मेरा माई के साथ कुछ संबंध रहा? नहीं, मेरा माई के साथ नहीं, तो उस टाइम इतना मैं जाती थी मेरा साथ हफ्ते में एक बार बस में, तो मिलती थी, जय बाबा करती थी, फिर निकल जाती थी वहां से। और मेरा ने भी कभी ऐसा कहा नहीं कि मनी मेरे पास बैठ के ऐसा कुछ। हाँ, ट्रस्ट ऑफिस में कभी कभी जाती थी एरज और मनी को मिलने को। तो मनी ने मुझे एक बाबा के बाल दिए थे और एक बाबा का फोटो, जो काला कोट पहना और सिर के ऊपर सफेद कपड़ा रखा, उनकी एक स्टोरी सबको मालूम है। वो फोटो मनी ने मुझे दिया, मनी आंटी ने। वो फोटो है मेरे पास, और बाबा के बाल है जो मनी ने दिए थे। वो बाबा की स्टोरी क्या हाँ, है? बाबा का रुमाल भी मनी ने दिया था, वो क्या तो वो है? भी मेरे पास है। सर पे रुमाल रखा, वो क्या है? वो स्टोरी क्या है? आप बोला कि सबको मालूम है ये हाँ, बाबा। मुझे तो नहीं मालूम। हाँ, कैन यू टेल अस द स्टोरी? तो बाबा का जो फोटो है ना, काला कोट पहना है बाबा ने और सर के ऊपर सफेद कपड़ा रखा है, ये फोटो की एक स्टोरी है। तो मुझे लगता है कि स्टोरी सबको मालूम है। वो आप बताइए। नागपुर की स्टोरी है। यश का फैमिली जब नागपुर में रहते थे ना, तभी बाबा जब भी नागपुर जाते थे तो उनके वहां रहते थे हमेशा, और वह दर्शन देते थे, लोगों को बात करते थे। जब भी नागपुर गए बाबा तो उनके ही वहां रहते थे। तो एक दिन बाबा नागपुर गए थे, उनके वहां थे, तो ऐसा घर में घूम रहे थे, तो बाबा के फोटो थे वहां। तो एक फोटो बाबा को पसंद आया, वो जो भाई बोलती हो काला कोट पहना, सर के ऊपर सफेद कपड़ा है, वो फोटो। तो उन्होंने एरज की मम्मी को, मुझे गायमा है नाम उनका, तो हम उनको गाय मम्मा बोलते हैं, तो उनको कहा कि दीवार पे से फोटो निकाल के टेबल पे रखो। तो उन्होंने टेबल पे रखा। फिर बाबा ने कहा कि घर में जितने मेंबर है सब जन आओ और फोटो के सामने खड़े रह के प्रेयर करो, ऐसा बाबा ने कहा। तो सब जन आए, तो टेबल पे फोटो था, तो फोटो के सामने सबसे आगे बाबा खड़े रहे, और बाबा हाथ जोड़कर खड़े रहे, और प्रेयर शुरू हुई तो बाबा ने भी प्रेयर की, ऐसा हाथ जोड़ के। फिर जब प्रेयर खत्म हो गई तो बाबा ने ये फोटो हाथ में लिया और नमन किया। खुद के फोटो को खुद ने बाबा ने नमन किया, और अपने हाथ से ये फोटो गाय मम्मा के हाथ में दिया, और कहा कि आज से इस फोटो में मैं रहूंगा। वापिस बोले कि याद रखना कि इस फोटो में आज से मैं हमेशा हूँ, 24 कलाक में ये फोटो में मैं रहूंगा, इतना याद रखना। फिर बाबा नगर आ गए। बाबा नगर आ गए तो एक दिन आई थिंक सीडी देशमुख, उनका, वो भी नागपुर में ही रहते थे ना, वो उनके घर मिलने को गए उनको। तो उनको ये फोटो की बात बताई, तो उनने कहा गाय मम्मा को कि ये फोटो मुझे दीजिए, मैं उसमें से कॉपी निकलवा के आपको लाके वापस करूंगा। तो उन्होंने फोटो दे दिया। थोड़े दिन हो गए लेकिन वो फोटो लाया नहीं। तो यहाँ से एक दिन बाबा ने गाय मम्मा के नाम टेलीग्राम भेजा, और उसमें लिखा कि तुमने मुझे तुम्हारे घर से बाहर क्यों भेज दिया। तो पहले तो समझ में नहीं आया, तो नाराज हो गए। वो सोचे मन में कि जब भी नागपुर आते थे मैं यहाँ रखती थी उनको, तो ऐसा क्यों लिखा कि मैंने भेजा। मैंने कभी उसको भेजा नहीं किधर के तुम इधर जाओ, तुम उधर जाओ, वहां रहो, कभी नहीं बोला ऐसा क्यों। तो नाराज हो गए और उसके आंख में आंसू आ गए। फिर एकदम उनको याद आया कि वो सीडी देशमुख जो फोटो ले गया था, तो फोटो लाया नहीं वापिस, और बाबा ने कहा था कि इस फोटो में मैं हाजिर हूँ। तो उनने ये फोटो को भेज के मंगवा लिया। ऐसी ये फोटो की स्टोरी है। वो फिर वो लोग नागपुर से जब आए और बिंद्रा हाउस में रहे, तो बिंद्रा हाउस में ये फोटो था जिसके सामने मैंने खड़े होकर मेरे बेटे के एडमिशन की दुआ मांगी थी। फिर वो फोटो जब मेराजार वो लोग रहने गए, तो मेराजार में वो फोटो गाय मम्मा और मनु जिस
कमरे में रहते थे, उस कमरे में था। अभी ये फोटो जब मनु चली गई तो ये फोटो मेहरबान ने डॉली केरावाला को, शाम की बेटी को दिया। तो शाम उन लोगों का मेहराबाद में, अरे मेहराबाद में बहुत बड़ा घर है डी हॉस्टल के बाजू में, तो उस घर में ये फोटो है। तो ये फोटो के सामने आंख बंद करके मैंने नजर के सामने ये फोटो रखकर बाबा के मदद मांगी है। ऐसी ये फोटो की स्टोरी है। मुझे लगा आपको सबको मालूम होगा ये स्टोरी, तो इसलिए मैं पहले नहीं बताया। नहीं, स्टोरी मालूम थी, लेकिन ये व्हाइट व्हाइट हैंकी का कॉन्टेक्स्ट नहीं मालूम था। ये स्टोरी मालूम थी। हाँ, ठीक है। ये बिंद्रा हाउस का फोटो किसके पास है? बिंद्रा हाउस का फोटो पता नहीं, बिंद्रा उसका फोटो मेरे पास तो नहीं है। शायद लॉर्ड लॉर्ड मेयर में होगा शायद। टाइम है क्या कि हाँ टाइम जी, हो हाँ गया? जी, टाइम है, बहुत टाइम है। एक 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 भजन मैं गा सकती हूँ? जरूर जरूर। अच्छा, थैंक यू। जय बाबा। जय बाबा। छुपे हो कहाँ तुम, जरा ये बताओ, ओ बाबा मेरे दिल की बस्ती में आओ। गुजारा हो मेरा, रहो साथ हरदम, बदल जाए इस दिल का गमगीन आलम। जरा इस तरह दिल की हालत बनाओ, ओ बाबा मेरे दिल की बस्ती में आओ। तुम्हारी मेहर के सिवा कुछ न होता, जो तुम चाहते वैसा कुछ भी न होता। हमारी मोहब्बत को ना आजमाओ, बाबा मेरे दिल की बस्ती में आओ। मचलते हैं अरमां, तड़पती है आहें, तुम ही पे लगी मेरी बेबस निगाहें। अंधेरे में हूँ, रोशनी बन के आओ, ओ बाबा मेरे दिल की बस्ती में आओ। ख्यालों में कब तक उलझता रहूं मैं, हवाओं में कब तक भटकता फिरूं मैं। प्रेमी की नजरिया को रोशन बनाओ, ओ बाबा मेरे दिल की बस्ती में आओ। छुपे हो कहाँ तुम, जरा ये बताओ, ओ बाबा मेरे दिल की बस्ती में आओ, ओ बाबा मेरे दिल की बस्ती में आओ। जय बाबा। जय बाबा। बहुत ही सुंदर ये भजन है। कहाँ से मिला ये आपको? ये मैं पहले बहुत साल पहले, जब मेरे दोनों बेटे की शादी हो गई ना, तो भाऊजी ने एक बार मेरा बड़ा बेटा फिरोज को सेंटर में अपने पास बुलाया, और भाऊजी ने कहा कि अब तुम दोनों भाई की शादी हो गई, बहुए मम्मी की दोनों आ गई घर में, तो अभी मम्मी रिटायर घर में से, तो अभी जब भी मैं किधर भी जाऊं प्रोग्राम के लिए, तो मेरे साथ मम्मी को भेजना। तो फिरोज ने कहा कि हाँ जी। तो बाबा भाऊजी जब भी जाते थे, उनका प्रोग्राम फिक्स होता था,
तो फिरोज को फोन करता था, और कौन से दिन किसी टाइम को कौन सी ट्रेन में निकलना यहाँ से, वो सब बताते थे फिरोज को। और मैं बाबा के साथ, अरे बाबूजी के साथ जाती थी। तो मैं बहुत जगह घूमी बाबूजी के साथ, पूरा हमीरपुर भी घूमी हूँ बाबूजी के साथ। तो अभी कौन से शहर में वो गीत मैंने सुना तो याद नहीं मुझे, लेकिन वो जो जिसने वो गीत गाया था वहां, उसने मुझे लिख के दिया था। उसका नाम लखन था, लखन, पर सरनेम तो मालूम नहीं मुझे। तो उसने मुझे ये गाना लिख के दिया था, तो उसके वर्डिंग मुझे बहुत पसंद है, इसलिए ये गाना मुझे बहुत पसंद है। मैं रोज ये गाना घर में गाती हूँ। वेरी नाइस, वेरी नाइस, ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा है। किसी को और कोई सवाल पूछने हैं? कि जैनिस पूछ रही है कि आप भाऊजी के साथ में जाते थे, तो जरा वो भी बताइए। कि बाबूजी के साथ जाती थी, तो बाबूजी जहाँ प्रोग्राम करते थे तो अपनी बातें बोलते थे लोगों को। वहाँ हम बहुत से लोग जन जाते थे ना, फॉरेनर भी, और मेरा साथ के बहुत से, तो सबके साथ में ही जाती थी, और मैं सबके पास बैठ के सुनती थी बाबूजी की बातें। हाँ, लखनऊ तो 3 बार गई थी मैं, लखनऊ। अरे वाह, हाँ। फिर लखनऊ में के श्रीवास्तव नाम के थे, जी। उनके अपने घर में सबको रखते थे हम सबको, के श्रीवास्तव। तो वहां तो बहुत अच्छी पहचान हो गई थी। 3 बार गई थी मैं। तो जब भी कुछ काम के लिए बाहर जाते थे, मैं किचन में, खाना पकाने वाले तो बुलाते थे दोनों टाइम, लेकिन सुबह चाय वो बनाते थे, तो मैं किचन में जाके उनको चाय बनाने में मदद भी करती थी। के श्रीवास्तव मुझे नाम याद है। जिमी खान, एनी क्वेश्चंस? जमशेद जी। आपके आपके पति ने आपको कुछ पुश नहीं किया कि बाबा सचमुच खुदा है तो मान, वो ऐसा मत कर, ऐसा कुछ आपको पुश नहीं किया आपके पति ने? नहीं, मैं सच बोलती हूँ कि घर में सब चल बाबा के नाम लेते, बाबा को बहुत मानते, लेकिन मेरे हस्बैंड, सच बोलती हूँ मैं, मुझे सरप्राइज है कि इतना वो बाबा को भगवान तरीके नहीं मानते थे, और कभी वो मैंने उनको प्रेयर करते भी नहीं देखा। वो भी एक सरप्राइज है, इतना वो नहीं मानते थे। हाँ, समाधि पर जाते थे, लेकिन वो तो नगर रहना भी पसंद नहीं करते थे। उनको वहां, जहाँ शुगर फैक्ट्री में सर्विस थी, वहां रहते थे, लवरी शुगर फैक्ट्री में वो केमिस्ट थे। ओके, थैंक यू बाबा, ब्लेस यू, थैंक यू, बहुत मजा आई। नो थर्सडे आपको भी थैंक यू, मुझे आपने चांस दिया बोलने का। तो अरे, मेरे मन की बात मैं, किसी को तो दिल खाली करना किसके पास, तो मैंने आपके पास दिल खाली किया मैंने। और मैं अभी दुआ करती हूँ कि बाबा एक बार मेरे को सपने में तो अभी आके उनका चेहरा बताए। मैं बाबा को बोलती कि जिस टाइम आपको मैं मिली, उसी टाइम आपका चेहरा कैसा था वो तो आप बताइए जरा एक बार। बाबा नहीं बताते, तो अर्जुन मैं रोज बोलती हूँ बाबा के, दुआ मांगती हूँ कि बाबा ये मेरी पूरी करो इच्छा। अभी बाबा की मर्जी। एक न एक दिन जरूर हो जाएगा, ये जरूर हो जाएगा। बाबा आपकी थैंक यू। इच्छा। आमीन हो, आमीन। और मैं ये भी दुआ करती हूँ बाबा को कि मेरे दोनों बेटे, दोनों बहुए, सब जन जो मेरे इतनी काळजी करते, इतना ध्यान देते, उनको हमेशा सुखी रखे और तंदुरुस्त रखे। वो मैं बाबा को रोज बोलती हूँ, क्योंकि मेरी लाइफ उन लोगों ने बहुत हैप्पी बनाई है। मुझे कोई बात को दुख के तकलीफ नहीं है, इतना वो लोग मुझे संभालते। मनी, ये तो आपका कर्म की बात है, आपके और उन लोग के कर्म की बात। दिलशाद कपाडिया wants to हाँ, पर ask. मेरा ऐसा कैसा कर्म के बाबा को मैंने गालियां दी, देखा नहीं, नफरत की, वो भी पता नहीं।
अच्छा, ओके। जय मेर बाबा। नहीं नहीं, वो भी सच्चे दिल से किया था ना। बाबा को गाली भी सच्चे दिल से दिया था, तो वो भी अच्छा है, बाबा को वो भी अच्छा पसंद आता। हाँ, पता नहीं, बाबा कहते थे जो होता हो मेरी मर्जी से, तो ये मेरी उनकी मर्जी थी, ऐसा समझती हूँ। दिलशाद कापड़िया ने कुछ सवाल पूछना है, 1 मिनट। हाँ दिलशाद, गो अहेड। Yes. Jai Baba, जय Mani बाबा। and everybody. मनी आंटी, मैंने आपका लास्ट वीक का तो सेशन नहीं सुना है और आई रिग्रेट कि मैंने नहीं सुना। पर आप बहुत ही प्यारी सी बातें कर रहे हैं और थैंक यू वेरी मच। मुझे एक चीज जो आप जैसे सीनियर इंसान से जानना है कि आप अभी बोले थे कि आप बाबा के जो फोटो है, जो वाइट पगड़ी और वाइट सॉरी रुमाल और कोट में, और आपने उसके आगे जाके अपने बेटे के एडमिशन के लिए प्रार्थना की। सवाल हाँ मेरा ये है कि बाबा ने ये भी कहा है हमेशा कि मुझसे कुछ मांगो मत, मैं कुछ तुम्हारी इच्छाएं या तुम्हारी बातों को फुलफिल करने के लिए नहीं हूँ। और ये बोलना बहुत आसान है, मैं खुद भी बहुत ही बाबा को परेशान करती हूँ ये मांग के वो मांग के। तो आपका बरोबर है। उसमें क्या रवैया है, कैसे जिया जाए, क्योंकि बाबा ही हमारे दोस्त है, तो दोस्त के आगे तो हाथ मीन्स ही इज एवरीथिंग, सो इट्स ऑन इन अ वे नॉट पॉसिबल नॉट टू आस्क हिम। आप जैसे सीनियर इंसान इस बारे में क्या बताएंगे, कैसे जीना चाहिए, बाबा के शब्द फॉलो भी करना है और दुनियादारी भी निभानी है। उसका थैंक जवाब हाँ, ये वो तो है, बाबा ने बोला था नहीं, पर मैं तो हमेशा मांगती थी। आज तक मैं हमेशा ये बाबा ये करो, बाबा वो करो, क्योंकि तकलीफ जब भी होती तो इंसान भगवान की मदद मांगते ही है ना। हाँ, तो फिर तकलीफ में तो मैं मांगना पड़ता है, बोलना पड़ता है, ये करो वो करो। चैलेंज पर सबसे पहली बार जब मैंने बाबा को याद किया तो ऐसा दिल से नहीं याद किया, चैलेंज किया कि तुम भगवान हो तो मेरे हस्बैंड को शांत करो। चैलेंज किया मैंने, वो भी एक ये है ना। तभी दिल से मैंने मदद नहीं मांगी, चैलेंज करके मांगी कि भगवान हो, सचमुच तो करो है। थैंक यू। नागेंद्र जय प्रसाद, मेरे बाबा। आपका सवाल क्या है सर? नागेंद्र प्रसाद। जय बाबा, जय बाबा। जय मेर बाबा। मैडम, आप चिंता मत हो। आपका नाम तो मणि से शुरू होता है, मतलब बाबा आपको बाबा का बहन का माफिक आपको माना है, तो एक ही बात है। दूसरी बात है, मैं भी ऐसा हूँ। मेरे पिताजी मेहर बाबा को 1954 में देखा था, लेकिन वो बात तो मेरे को कभी नहीं बताया। बाबा का देहांत तो होने के बाद बाबा के बारे में मेरे को जानने का मौका मिला। तो कभी कभी होता है, लेकिन दिल से बाबा हम सबको चाहते हैं, इसलिए अभी तक हम लोग बाबा का पकड़ा है। बस यही खुश रह दीजिए। जरूर आज हो सकता है आज ही रात को आपको सपने में बाबा मिल सकता है। थैंक यू, धन्यवाद आपको। कितना भाग्यशाली है आप मैडम, बाबा का इतना चीज बताया, बहुत खुश हूँ। थैंक यू, धन्यवाद। जय बाबा। थैंक यू। जय बाबा। जय जय बाबा, जय बाबा, जय जय बाबा। एनीबडी एल्स वांट्स टू आस्क एनीथिंग? किसी को कुछ पूछना है? Sam uncle, you were saying something regarding my question. If you have any inputs, please. हाँ, वो ये कि एक दिन मंडली हॉल में एरज जसावाला के सामने हम सब लोग बैठे थे, तब यही सवाल उठा था कि बाबा से कुछ मांगना चाहिए, पूछना चाहिए, बोलना चाहिए कि कुछ नहीं करने का वो सब जानते हैं ऐसे। तो एरस ने बहुत ही सुंदर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि अगर आप बाबा को खुदा मानते हो, आपका माता पिता जो भी कुछ सब कुछ वो ही है, तो एज अ चाइल्ड, एज हिज चाइल्ड, तुम उनसे मांगने के लिए बेझिझक कुछ भी मांग सकते हो। देना ना देना वो उनके हाथ में है। दैट इज हाउ द थिंग्स वर्क। तुम्हारे दिल में जो भी कुछ प्रॉब्लम है, डिफिकल्टी है, आप उनसे मदद मांग सकते हैं। और वो जो भी
करे वो उनकी मर्जी से करेंगे, उसके ऊपर तुम्हारा कोई हक नहीं बनता है. दैट इज द आंसर आई हैव फॉर योर क्वेरी. इज दैट ओके विथ यू दिलशाद? आर यू हैप्पी? Thank you, Sam uncle, for sharing. सी, एक एक मुझे इंसिडेंट याद आता है. हैरी कैनमोर, नहीं नहीं, नॉट हैरी कैनमोर. माय गॉड स्पीक्स लिखने वाला कौन था? Don Stevens. डॉन स्टीवंस. हाँ, डॉन स्टीवंस जब अमेरिका बाबा को मिलने के बाद अमेरिका गए थे, वहां पे उनकी मदर गुजर गई थी. Yes, I know that story. Right. Thank you. हाँ, सो बाबा ने कहा था कि तूने मुझे बताया क्यों नहीं. यू नो दैट स्टोरी. Yes, that story I know, but in terms of our small requirements, we always keep character Baba. So, हाँ हाँ, तुम्हारा हक बनता है. You have every right. If you take him as your Lord and Master, you can ask anything from him. Of course, thank you. without any hesitation. Only thing is कि जो भी फिर मिले नहीं मिले, उसमें फिर गड़बड़ नहीं करने का कि बाबा मैंने तो मांगा और आपने नहीं दिया, ये नहीं वो नहीं. एक्चुअली अगर ये अभी 7 बजने का टाइम हो गया, इफ आई मे एक्सटेंड दिस बाय अ फ्यू मोर मिनट्स, तो मुझे एक इंसिडेंट बहुत ही यही टॉपिक पे एक इंसिडेंट याद आता है. मेरे फादर एरज पटेल, उनका एक दोस्त था, who was a priest, पारसी दस्तूर थे. उनका नाम था नौशीर. मुझे अजून भी याद है, वो हमेशा मिलते थे और मेरे पिताजी उससे बाबा की बातें करते थे, ये वो. ये नौशीर को लड़का नहीं हुआ था. आई एम सेइंग दिस, नरेटिंग दिस इंसिडेंट टू हमारा ध्यान खींचने के लिए कि बाबा से मांगना क्या होता है और कैसे मांगना और उसका नतीजा क्या होता है. एनीवे, वो ये नौशीर को कुछ भी औलाद नहीं हुई थी, तो उन्होंने कहा कि एरज साहब, तुम्हारे वो जो मेयर बाबा है, उनको बोलो कि अगर वो मुझे बेटा दे देवे तो मैं उनका फॉलोअर बन जाऊंगा. तो माय फादर सेड कि ऐसे नहीं चलता है, तुम आ जाओ, तुम साथ में आओ और उनको मिलो और उनसे पूछो, उनसे मांगो. तो एक समय वो दोनों गए, यानी सब लोग के सामने माय फादर टुक दिस फ्रेंड ऑफ हिज, नौशीर, और बाबा को मिले. नौशीर वाजंट अ बिलीवर, वो अपने जोरासन फैमिली में मानते थे वगैरह वगैरह, तो वो हेजिटेंट था, मगर फिर भी वो जाके वहाँ पे खड़े रहे. और फिर माय फादर सेड कि उनको कुछ आपसे मांगना है. तो बाबा ने पूछा क्या है, बोलो मांगो. तो उन्होंने कहा कि बाबा मुझे बेटा चाहिए. बाबा ने मुंडी हिला के बोला कि नहीं, ये बात जाने दे, दूसरा और कुछ मांगना है तो मांग. तो बोला नहीं, मुझे बेटा चाहिए. सेकंड टाइम व्हेन ही सेड, बाबा ने बोला जिद मत कर, तू जाने दे, ये बात ही जाने दे, और कुछ भी चाहिए तो मांग ले, ये नहीं हो सकता है. फिर उन्होंने थर्ड टाइम इंसिस्ट किया कि बाबा, अगर आप खुदा हो तो मुझे बेटा चाहिए तुम्हारी थ्रू से. तब बाबा ने कंटाल के कहा कि तू ये जिद पकड़ के बैठा है, तो जा, तुझे मैं दे देता हूं. ऐसे करके वो बैठे थे, तो उनकी बाजू में फ्रूट बास्केट थी, उसमें से एक अनार का फल, पोमेग्रेनेट, अनार का फल उसके हाथ में थाम दिया और उसको कहा कि ये पूरा फल तू अकेले में पूरा फल खा जाना, इंक्लूडिंग द सीड्स, सब कुछ खा जाना, और तुझे जो चाहिए वो बेटा हो जाएगा. दे कम बैक, और इन्होंने जो किया बोला था वैसे किया, और उनको बेटा हो गया.
ये बात को फिर 20-25 साल हो जाने के बाद, इस समय मैं मेरे पिताजी के साथ मौजूद था। मुझे अजून भी याद है, ये चन्नी रोड जंक्शन पे जो वो ईरानी की बेकरी और पेट्रोल पंप है, उसके सामने वो कामाबाग से वो प्रीस्ट आ रहा था, और मेरे पिताजी उनसे मिले तो बोला, नौशीर कैसे है, ये वो। तब वो रो पड़ा, और रोते रोते उसने कहा कि मैंने वो जो जिद करके ये मेहर बाबा से जो मेरे बेटे के लिए मांगा था, वो मुझे नहीं करना था, क्योंकि ये मेरा बेटा इतना शैतान निकला, इतना शैतान निकला कि मुझे बहुत बहुत परेशान कर रहा है। पहले से ही मुझे बहुत परेशान कर रहा था और अभी भी कर रहा है। और मेरे दिल में ये होता है कि मैंने ये क्यों जिद करके मांगा, ये तो मर जाता तो अच्छा होता। तो ये जब बाबा कोई भी चीज एक टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम मना करते हैं, तो उसमें जिद करके मांगने से कुछ भला नहीं होता है। दिस इज व्हाट केम टू माय माइंड एंड आई एम नरेटिंग इट। थैंक यू एवरीबॉडी एंड जय बाबा। अभी प्रेयर एंड आरती का टाइम हो रहा है, तो लेट अस ऑल जॉइन इन रिमेम्बरिंग आवर लॉर्ड मेहर बाबा। ये साल खत्म होने को आया है, 2024 जल्दी ही शुरू होने वाला है, और ये ऐसे ही जिंदगी चलते रहेगी। ये साल खत्म होगा, अगला साल शुरू होगा, और व्हाट वी हैव टू डू इज ट्राई एंड बाबा से दुआ मांगने की कि भाई ट्राई एंड लव हिम मोर एंड मोर। वो एरज जसावाला की कोट में वापस करता हूँ, वो कहते थे कि बाबा प्लीज हेल्प अस टू ट्राई एंड लव यू मोर एंड मोर एंड मोर एंड मोर until I remain no more। ये एरज जसावाला बोलते थे। थैंक यू एवरीबॉडी। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। O Parvardigar, the preserver and protector of all, you are without beginning and without end, non-dual, beyond comparison, and none can measure you. You are without color, without expression, without form, and without attributes. You are unlimited and unfathomable, beyond imagination and conception, eternal and imperishable. You are indivisible, and none can see you but with eyes divine. You always were, you always are, and you always will be. You are everywhere, you are in everything, and you are also beyond everywhere and beyond everything. You are in the firmament and in the depths. You are manifest and unmanifest, on all planes and beyond all planes. You are in the three worlds and also beyond the three worlds. You are imperceptible and independent. You are the Creator, the Lord of Lords, the knower of all minds and hearts. You are omnipotent and omnipresent. You are knowledge infinite, power infinite, and bliss infinite. You are the ocean of knowledge, all knowing, infinitely knowing, the knower of the past, the present, and the future.
and you are knowledge itself. You are all merciful and eternally benevolent. You are the soul of souls, the one with infinite attributes. You are the Trinity of truth, knowledge, and bliss. You are the source of truth, the ocean of love. You are the ancient one, the highest of the high. You are Prabhu and Parmeshwar. You are the beyond God and the beyond God also. You are Parabrahma, Allah, Ilahi, Yazdan, Ahura Mazda, and God the Beloved. You are named Izzat, the only one worthy of worship. We repent, O God most merciful, for all our sins, for every thought that was false or unjust or unclean, for every word spoken that ought not to have been spoken, and for every deed done that ought not to have been done. We repent for every deed and word and thought inspired by selfishness, and for every deed and word and thought inspired by hatred. We repent most specially for every lustful thought and every lustful action, for every lie, for all hypocrisy, for every promise given but not fulfilled, and for all slander and backbiting. Most especially also, we repent for every action that has brought ruin to others, for every word and deed that has given others pain, and for every wish that pain should befall others. In your unbounded mercy, we ask you to forgive us, O God, for all these sins committed by us, and to forgive us for our constant failures to think and speak and act according to your will. Amen. Beloved God, help us all to love you more and more, and more and more, and still yet more, till we become worthy of union with you. And help us all to hold fast to Baba's Daman till the very end. Avtar Meher Baba Ki Jai. बुझावे नार जहलतनी कर खुद रत्न फरमातु छलागी आश भक्तों ने की बख्श नूरे मातु अयामुर शाद मेहर बाबा चरण पर तुझ न धरिए सर खुदाना जात थी वाकिफ थई बै थो मेहर बातू तू छे माँ लिख हकीकत नो तू आशिक भीने आरिफी तुझे दरी याए वहदत मारिफत नो हो ही तू फातू हमोर है रब ने सालिक बख्शे ज्ञान ही जदनु के तू पर महात्मा ज्ञानी छने मुख तारे फातु खुदाना प्रेमनो प्यालो पिलावी मस्त हमने कर छे तुझ पर जान सद के साखिया पीध पे मातू हम
हमारी नाव भर दरिए तरावे, तो हमें तरिए हमारा ना खुदाए मेहर बाबा, छैनिगे बातू हमारा ना खुदाए मेहर बाबा, छैनिगे बातू भुजावे नाहर जहलतनी कर खुद राहत ने फरमातू, छलागी आश भक्तों ने की बख्शे नूरे ईमातू। कर मेहर बाबा की जय। हुआ लहर से ही है जिसकी सृष्टि का निर्माण, उसकी दैवी अनंतता का कैसे हो अनुमान। आदि सचेतन शांति निकेतन, आदि सचेतन शांति निकेतन, नमो ब्रह्मा आओ, मेहर प्रभु आरती अपनावो, मेहर प्रभु आरती अपनाओ। प्रेम दीप में ही ये जलाऊ, प्रेम दीप में ही ये जलाऊ, निबिड़ अंधेरा मिटता पाऊ, निबिड़ अंधेरा मिटता पाऊ। अपना सब कुछ तुम्हें चढ़ाऊ, अपना सब कुछ तुम्हें चढ़ाऊ, तुम मुझको सरसाओ, मेहर प्रभु आरती अपना वो, मेहर प्रभु आरती अपनाओ। जीवन की हर सांस हमारी, जीवन की हर सांस हमारी, बन जाए प्रभु गति तुम्हारी, बन जाए प्रभु गति तुम्हारी। है करुणा कर लीलाधारी, है करुणा कर लीलाधारी, तुम करुणा बरसाओ, मेहर प्रभु आरती अपनावो, मेहर प्रभु आरती अपनाओ। बने आरती जीवन मेरा, बने आरती जीवन मेरा, आदि अंत का लय हो घेरा, आदि अंत का लय हो घेरा। खुले नयन और दिखे सवेरा, खुले नयन और दिखे सवेरा, तुम मुझ में छा जाओ, मेहर प्रभु आरती अपनाओ, मेहर प्रभु आरती अपनाओ। आदि सचेतन शांति निकेतन,
आदि सचेतन शांति निकेतन नमो ब्रह्मा आओ। मेहर प्रभु आरती अपनावो। मेहर प्रभु आरती अपनाओ। अवतार मेहर बाबा की जय। 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 Jai Baba, everybody. We now come to the closure of this program. And before we part, I'd like to wish all of us, all around the world, a very, very happy forthcoming New Year. May Baba bless us all and your loved ones always. Avtar Meher Baba Ki Jai.